Hello everyone. This is the second part of the chapter, The Address. Let's recap whatever we have done. When the address chapter started, we read that the narrator knocked at the door of a house, but the door was opened only a little. The narrator told Mrs. Darling that she was Mrs. S. daughter, but she didn't show any sign of recognition. The narrator thought that perhaps she was mistaken and rung the wrong bell. Then the narrator got a glimpse of her mother's green knitted cardigan, which Mrs. Darling was wearing. This confirmed to her that she had reached the correct address. But Mrs. Darling excused herself by saying that she could not talk to the girl that day and she should come again later. Then she shamelessly closed the door. After that, the narrator stood for some time on the steps even after the door closed. डोर क्लोज होने के बाद जो खड़ी रही थी वहीं पर. After this refusal, the narrator walked back to the station thinking about her mother. Her mother had given her Mrs. Darling's address years ago, and it had been in the first half of the war. The narrator's mother told her about Mrs. Darling, an old acquaintance. She also informed her that every time when Mrs. Darling came, she took something home with her. The reason Mrs. Darling gave for her action was that she wanted to save all the good things, as the narrator's mother would not be able to save everything if they had to leave suddenly. Then the narrator mother had accepted the idea, and she was rather obliged towards Mrs. Darling that she was carrying such a big heavy luggage every time she visited, as it was really risky during the war. The narrator arrived at the station without having paid any attention towards the things on the way. She was walking in familiar places again for the first time since the war. She didn't want herself upset with the sight of the street or houses. In the train, she remembered the first time when she had seen Mrs. Darling, a broad-backed lady. It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Darling, who was wearing a brown coat and a shapeless hat. The narrator had asked from her mother if she lived far away. Then her mother told Mrs. Darling's address, that is, she lived in Marconi Street, number 46. Up to here we have completed. Now I am going to start in this further story. Okay, let us see what happened next. I had remembered it. यहाँ पर नरेटर उस एड्रेस को याद रखती है, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन नरेटर को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा यहाँ तक वापस आने के लिए, मीन्स होलैंड में वापस आने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद मीन्स फ्रीडम होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टोर्ड स्टफ़. मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उन स्टोर्ड स्टफ्स पर. एंड नेचुरली आई वॉज रैदर अफ्रेड ऑफ इट. और नेचुरली मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. किस बात का डर था? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड. कन्फ्रंटेड मीन्स एनकाउंटर या फेस टू फेस विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन. एक ऐसे कनेक्शन के साथ ये बिलोंग कर रहा था दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट नहीं करता है अब. दैट मीन्स की मदर की डेथ हो चुकी है. जब मदर ही नहीं है तो उन चीज़ों की वहाँ वैल्यू नहीं रहती है. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड, जो कि अब तक क्या हो रखे हैं, कबर्ड्स में, बॉक्सेस में, इनमें अभी तक रखे हुए होंगे. ठीक है. एंड बॉक्सेस एंड वेट
वेटिंग इन वेन, और सिर्फ खाली वेट कर रहे हैं कि कब हमारे जो मालिक हैं ये सब चीज़ें वेट कर रहे हैं कि कब हमारे मालिक आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, और वापस उन्हीं जगहों पर रखे जाएंगे। मीन्स यहाँ पर है ना नरेटर ये समझ रही है कि वो सब चीज़ें ना अब तक पैक हो रखी होंगी, राइट। और वो सब चीज़ें जब पैक हो रखी हैं तो वो सारी चीज़ें भी सोच रही होंगी कि कब मैं वहाँ पर जाऊँगी, वापस उन्हीं चीज़ों पर जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, कि इतने साल हो गए उन्हें ये टोलरेट करते हुए इतने सालों से। बिकॉज दे वर थिंग्स, वो टोलरेट कर पाई, अपने मालिक से अलग रह पाई क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मियर थिंग्स थी। लेकिन मेरी मदर टोलरेट नहीं कर पाई, उनकी डेथ हो गई और वो अपनी चीज़ों से हमेशा के लिए अलग हो गई, राइट बेटा। यहाँ पर क्या है कि जो नरेटर है उसकी थिंकिंग है कि वो सब चीज़ें भी, जितना हम उन चीज़ों को मिलना चाह रहे हैं वैसे वो चीज़ें भी हमसे मिलना चाह रही हैं। एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पर जो नरेटर हैं, राइट। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो ब्रेड थे वो पहले से क्या हो गए हैं, अब लाइट कलर के हो गए हैं। मीन्स कि पहले लाइट कलर क्या मतलब है बेटा, कि पहले क्या था, जो ब्रेड थे वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में थे, अच्छे नहीं थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो स्टफ था उनका, बहुत ही बेकार खाने का दिया जाता था, ठीक है। मीन्स कि काफ़ी रफ़ होते था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता था, बहुत ज़्यादा ब्राउन। और ये वाइट कलर का क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये लाइटर कलर मीन्स पहले से चीज़ें अच्छी मिलने लगी हमें खाने के लिए, जो ब्रेड है, ठीक है। मीन्स लाइट कलर का ब्रेड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो वो पहले से बेटर होने लग गया है, अब ब्रेड भी अच्छा मिलने लग गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, और एक ऐसा बिस्तर जहाँ पर आप बिना डर से सो सकते हैं। एक रूम, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक रूम ऐसा है आप जहाँ से आप बहुत अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, नज़ारे देख सकते हैं। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन क्या होता है कि मैं ये नोटिस किया, दैट मीन्स नरेटर कहती है कि मैंने ये चीज़ महसूस किया, दैट आई वॉज क्यूरियस, कि मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से ईगर हूँ, मीन्स कह सकते हो एनेक्शियस हूँ, बहुत ही इच्छा होती है उनको उन चीज़ों को देखने की। अबाउट ऑल दी पोसेशन मीन्स होता है बेटा बिलोंगिंग्स, जो उनकी चीज़ें थे उन्हें देखने का मन करता है। एंड दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि अभी भी वो उसी एड्रेस पर होंगे। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ। किसको, अपनी, उनके थ्रू अपनी मदर के साथ बीते हुए उन पलों को याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, जब मेरा फर्स्ट विजिट यूजलेस हुआ टू मिसेस रॉलिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। अब वो सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम ट्राई करती है वहाँ जाने की। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब सेकेंड टाइम में क्या होता है, एक लड़की जो 15 साल की थी उसने डोर ओपन किया, और टू मी आई आस्क्ड हर, ओपन द डोर टू मी, उस लड़की ने डोर ओपन किया जो कि 15 ईयर्स की, दैट मीन्स मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा कि क्या आपकी मदर घर पे है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। माई मदर इज़ डूइंग एन इरेंट, वो वर्क पर गई हैं या वो जॉब पर गई हैं, कि मतलब कि किसी थोड़े बहुत किसी काम के लिए गई हैं, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो जॉब और वर्क, ठीक है, मीन काम पर जाना, इरेंट। नो मैटर, अच्छा चलो कोई नहीं। आई सेड आई विल वेट फॉर एन, चलो कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। I followed the girl along the passage, an old-fashioned iron Hanukkah candle holder. अब मैं एंटर कर गई घर के अंदर, ठीक है। अब वो लड़की के पीछे पीछे चलने लगी मैं, जो कि एक पैसेज के थ्रू, मतलब कि एक पैसेज को क्रॉस कर रही थी अलोंग द पैसेज। वो जो जहाँ वो डोर ओपन हुआ था ना, उसके यहाँ पर क्या था, एक पैसेज था, रास्ता था लिविंग रूम में जाने के लिए। तो वो पीछे पीछे जाती है उस गर्ल के, उस रास्ते से गुजर कर। एन ओल्ड फैशन आयरन हुनुका कैंडल होल्डर, एक
देखती है कि काफ़ी पुराने ज़माने का हुनुका कैंडल होल्डर था जो कि मिरर के साइड में हंग हो रखा था, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। वी नेवर यूज्ड इट। वो कहती है आगे नरेटर कि हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी था, इसलिए उन्होंने ना उसकी मतलब कि नरेटर की फैमिली ने उसको कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी था और इसीलिए उन्होंने इसको यूज़ नहीं किया। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, इसलिए एक सिंगल कैंडल स्टिक से तो ये बहुत ज़्यादा हैवी था, कम्बरसम था, और इसीलिए इसको सिर्फ शो पीस के लिए रखा था इन्होंने, और इसका यूज़ कभी नहीं किया। वॉन्ट यू सिट डाउन द गर्ल। अब लड़की उससे पूछती है क्या तुम बैठोगे नहीं, ऐसे ही खड़ी रहोगी। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ अ लिविंग रूम। अब वो एक जो लिविंग रूम है उसको खोल देती है, ठीक है, कि आप वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और फिर उसके बाद मैं अंदर चली गई, ठीक है। मीन्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जाते ही उन्होंने देखा कि भाई वो मिरर के साइड में एक हुनुका कैंडल होल्डर है जो कि हमने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है। वो चीज़ों को सोच रही है देखकर। तो लिविंग रूम का यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर बैठ गई है, और आई वेंट इनसाइड, में उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, डर गई, डर से मैं वहीं रुक गई, हॉरिफाइड हो गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे रूम में थी। आई न्यू, मैं उसे जानती थी उस रूम को, एंड डिड नॉट नो, मैं नहीं भी जानती थी। मीन्स यहाँ पर मतलब क्या है बेटा, जानती कैसे थी, क्योंकि वो जहाँ वो थिंग्स है ना चारों तरफ, वो उन्हीं की थी, नरेटर की, और जिस सराउंडिंग में रखा गया था ना, जिस रूम में रखा गया था, वो रूम उनका नहीं था, वो मिसेस डॉर्लिंग का घर था, ठीक है। तो इसीलिए वो कहती है कि डिड नॉट नो, और जिस तरीके से रखा हुआ था, बिल्कुल मैस करके रखा हुआ था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपना वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिल्कुल इन सब चीज़ों के बीच में मैंने अपने आप को महसूस किया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे ऑप्रेस्ड किया, ट्रबल्ड किया, ठीक है। ऑप्रेस्ड मतलब है ट्रबल करना। मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एटमोसफियर था, बिल्कुल स्ट्रेंज एटमोसफियर था, जो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पर। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, या फिर इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से रखा हुआ था, बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं रखा हुआ था, बिल्कुल बिखेर रखा था चारों तरफ। एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, सारी चीज़ें बिल्कुल टेस्टलेस वे से अरेंज कर रखी थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, मीन्स ये जो अगली फर्नीचर है, मीन्स जो बिल्कुल फर्नीचर क्या है, सेट करके नहीं रख रखे हैं, बिल्कुल कोई बिखेर के रखे हुए हैं। और द मस्टी स्मेल, और मग्गी स्मेल, सॉरी, और जो वो मग्गी स्मेल आ रही है, जो मुझे वो स्मेल ऑफ डैमनेस, मतलब वही सीलन भरी, जैसे जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होती है तो वहाँ पर ऐसी स्मेल आती है, ठीक है। दैट हंग देयर, कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पर जिस तरीके से रखी हुई थी, और वो मुझे वो स्मेल आ रही थी, उन सब जो भी वहाँ पर चीज़ें हंग हो रखी थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है क्यों मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ ये बात नरेटर कहती है। बट आई स्केर्सली डेयर्ड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हार्डली, स्केर्सली मतलब होता है बेटा हार्डली, डेयर्ड हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे, टू लुक अराउंड मी, मीन्स बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, कि मैं अपने ही चारों तरफ देखने में बहुत ज़्यादा डर रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, कि मुझे नहीं पता रीज़न क्या था, पर मुझे डर क्यों लग रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने चारों तरफ देखूं, क्योंकि वो सब चीज़ें देखकर मुझे कोई पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, वो लड़की जो है वो चेयर लेकर आती है। आई सैट डाउन, नरेटर बैठती है, एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, जहाँ वो बैठती है ना वहाँ एक टेबल थी, उस टेबल पर है ना एक वुलन क्लॉथ से उसको कवर कर रखा था। तो आई रब्ड इट, और मैंने क्या किया, उसको रब किया। रब क्या होता है, उसको महसूस करना, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं रब करना, ठीक है। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी जो फिंगर्स हैं वो वार्म हो गई जब मैं उसको रब करी थी, मीन्स अफेक्शन से, ठीक है। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, एक पैटर्न वहाँ बना हुआ था, डैट मीन्स एक ऐसा डिज़ाइन कुछ बना हुआ था, और मैं उस डिज़ाइन को फॉलो करने लग गई थी अपनी फिंगर्स से। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, कि डेफिनेटली किनारे पर है ना एक है ना जलने का मार्क होगा, बर्न मार्क होगा, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जो कि कभी रिपेयर नहीं किया गया था। तो वो डेफिनेटली अभी भी ऐसा ही होगा, तो वो उस हाथों से उस
पैटर्न को फॉलो करती है उस बर्न मार्क तक पहुंचने के लिए। माई मदर विल बी बैक सून, फिर वो लड़की कहती है मेरी मदर बहुत जल्दी आने वाली है। वो लड़की कहती है आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने ऑलरेडी उनके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी लोगे? तो वो कहती है थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ तो देखा मैंने कि द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने वहाँ पर टेबल पे कप्स रख दिए हैं, रेडी कर दिए हैं टी डालने के लिए। शी हैड अ ब्रॉड बैग, उसकी भी जो बैग थी अपनी मदर की तरह ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पोट, उसने एक वाइट पोट से टी पोर्ट किया, डाला, चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन बॉर्डर, मतलब ऑल इट हैड वॉज अ गोल्डन बॉर्डर, जो कुछ था उस वो बिल्कुल वाइट था लेकिन क्या था, गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ था ऑन द लिड। लिड क्या होता है बेटा? ढक्कन, ठीक है। जैसे ये चाय का ढक्कन है ना, तो इस पर क्या है, बाउंड्री जो है वो गोल्डन से कर रखी है, ठीक है। आई रिमेंबर, मुझे याद था बी। शी ओपनड अ बॉक्स, फिर उसने एक बॉक्स ओपन किया एंड टुक सम स्पून्स आउट, और वहाँ से कुछ स्पून्स उस बॉक्स से निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स। अब वो कहते हैं कि यार ये बॉक्स तो बड़ा अच्छा है। अब वो बोलना नहीं चाहती थी पर उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि बॉक्स बड़ा अच्छा है। द आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ खुद सुनी, मतलब कि मैं बोलना नहीं चाहती थी पर वो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मैंने बोल दिया है। उसको लगता है जैसे कोई और बोल रहा है, पता नहीं क्यों निकली मेरी ये आवाज़। तो ये काफ़ी अजीब आवाज़ थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस। ऐसा लग रहा था जैसे इस रूम में ना जो साउंड है, जो आवाज़ निकल रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट निकल रही है। ओह, ऐसा लग रहा था कहीं और से आ रही है आवाज़। ओह, यू नो अबाउट देम, अच्छा तुम जानते हो इसको। शी हैड टर्न अराउंड एंड बॉट मी माई टी। टर्न अराउंड मीन्स चाय देती है मुझे, एंड शी लाफ्ड, और हंसती है। माई मदर सेज, मेरी मदर ने कहा था, इट इज़ एंटीक, मेरी मदर ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा एंटीक है। एंटीक क्या होता है बेटा? यूनिक, ठीक है। इसके ऐसा कोई और दूसरा नहीं मिले। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी हैं। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, और चारों तरफ फिंगर आउट करती है कि देखो हमारे रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब एंटीक है। सी फॉर योरसेल्फ, अपने आप देखो कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो बिल्कुल एंटीक है, स्पेशल है, और ऐसी चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर मिलेगी। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उसके हाथ को फॉलो करने की। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता है कौन सी चीज़ों के बारे में वो बोल रही है, और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ क्या स्पेशल है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, जो टी टेबल पर जो सामान पड़ा हुआ था, ठीक है, उसकी तरफ देखती है, उस स्टिल लाइफ पर, कि जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, हमेशा जब वो छोटी बच्ची थी तो उसको हमेशा फैंसीड था द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, मीन्स मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है। एक ऐसे उसको इस प्लेट का बड़ा शौक था। वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग, शी सेड, वो लड़की कहती है कि हम ना हर एक चीज़ में ना इस प्लेट को यूज़ करते हैं। वंस वी इवन ईट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, कि एक बार तो ना हमने वो सब भी यूज़ कर लिए, उस पर भी हमने उन प्लेटों पर भी खा चुके हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मीन्स यहाँ पर क्या कह रही है, यहाँ पर नरेटर कहती है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हमें हर चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वॉल में ना जो प्लेट हैंग हो रखी है, तो बोलते हैं हमने एक बार ना उन प्लेटों पर भी खाना खाया था। लेकिन आई वॉन्टेड टू सो मच, लेकिन मैं और भी करना कुछ चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन वो कहती है कि मुझे ना इस बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगी उसमें, खाने में ऐसा कुछ नहीं था, खाना वैसा ही था, कुछ स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, वो जो टेबल क्लॉथ पे पैटर्न फॉलो कर रही थी ना, अब उनसे वो बर्न मार्क मिल जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, मेरी तरफ क्वेश्चनिंगली वे में देखती है, डेट मीन्स वो कुछ पूछना चाहती है। फिर कहती, नरेटर कहती है, येस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, जब आप अपने घर में रहते हो तो आप इतना यूज्ड हो जाते हो उन चीज़ों से कि आप उन यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, कि तुम उन चीज़ों को नहीं देखते हो, ठीक है। मीन्स कि जब आप वो घर के में सामान होता है आपके, तो आप उन इतनी ज़्यादा यूज्ड हो जाते हो, आप इतना ध्यान से नहीं देखते हो। यू ओनली नोटिस, आप तभी ध्यान देते हो
व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब कोई चीज़ मिसिंग हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या फिर आपने रिपेयर करने के लिए दिया हो, या फिर यू हैव लैंड इट, या फिर आपने किसी को रखने के लिए दिया हो। और फॉर एग्जाम्पल मीन्स नरेटर यहाँ पर अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही है कि भी हमने तुम्हें ये चीज़ें रखने के लिए दी थी, यूज़ करने के लिए नहीं दी थी। पर ये बात है ना, गर्ल को समझ में नहीं आती है, तो ये मतलब कि वो इस तरीके से अपनी बात इनडायरेक्ट वे में उस लड़की को बोल देती है, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाती है कुछ भी। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और फिर से बोलना शुरू कर देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है उसको। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं उनकी मदद करूँ, उसकी मदर ने बोला था कि नरेटर उनकी मदद करे टू पॉलिश द सिल्वर। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रॉबेबली, और उस दिन मैं काफ़ी बोर हो रही थी, बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि उस दिन मैं घर पे रह रही थी और मैं बहुत बोर हो रही थी। एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, तो इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ा था। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी, मुझे इससे पहले कभी नहीं कहा था उन्होंने। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मेंट, फिर मैंने अपनी मदर से पूछा कि कौन सी सिल्वर पॉलिश करनी है। शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा सरप्राइज्ड होकर, हैरान होकर, दैट इट वाज द स्पून्स, कि वो जो स्पून्स है उनको क्लियर करो, फोर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, ठीक है, कि चलो इनको पॉलिश करवानी है हमें, फोर्क एंड नाइफ्स को भी। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग्स आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, ये बात है ना नरेटर को पता नहीं था कि जो कटलरी से वो खाते हैं वो सिल्वर की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, जो लड़की है दोबारा हंसती है। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि अब भी तुम्हें भी नहीं पता होगा कि जो कटलरी है ये सिल्वर की है, मुझे ये यकीन है, मैं श्योरली बोल सकती हूँ इस बात के लिए। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने उसकी तरफ इंटेंटली देखा। वट वी ईट विद, क्या हम जिससे खाते हैं। शी आस्क्ड वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम जानते हो। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, और वो थोड़ी सी हेजिटेट करती है, वॉक करती है साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, एक ड्रॉर ओपन करती है। आई विल लुक, मैं देखती हूँ वो सिल्वर की है या नहीं है। इट्स इन हेयर, यहाँ पर हैं बहुत सारी। आई जम्प्ड अप, मैं लेकिन तभी उठ जाती हूँ, और आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और मैं कहती हूँ कि भाई मेरी ना टाइम भूल गई हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मेरी टाइम हो गया ट्रेन का, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ वहीं ड्रॉर पे रहता है। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो मेरी मदर का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, और मैं दरवाजे पर चली जाती हूँ, ठीक है। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन्ड, आई कैन फाइंड माई ओन वे, उस लड़की ने वो ड्रॉर ओपन किया हुआ था, उसमें से कटलरी देख रही है, और मैंने क्या किया, आई कैन फाइंड माई, और मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क, कि मैंने क्या किया, मुझे वो जिंगलिंग साउंड, ठीक है, साउंड ऑफ जिंगलिंग मतलब है साउंड लाइक स्मॉल बेल्स टिंकलिंग, ये सब क्या है, ये साउंड्स हैं, ठीक है। तो किसकी साउंड सुनाई दे रही है उनको, फॉर्क एंड स्पून एंड फॉक्स की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, अब मैं सीधा चली जाती हूँ, मैं टर्न नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कॉर्नर ऑफ द रोड पे पहुँचती हूँ, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैं नेम प्लेट में देखती हूँ मार्कोनी स्ट्रीट, और वहाँ क्या लिखा होता है, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड इट हैड बीन एट नंबर 46, और हाँ डेफिनेटली वो नंबर 46 था, मार्कोनी स्ट्रीट था, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। बट द एड्रेस वॉज करेक्ट, हाँ ठीक है भाई एड्रेस तो बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसको बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं कभी नहीं जाऊँगी वहाँ पर। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली, अब एक बार ये देख लेना इंस्टेंटली मतलब क्या होता है बेटा, इंस्टेंटली मीन्स एट वंस, ओके, एट वंस।
यहाँ पर वो किसने कहा कि क्यों नहीं वापस जाएंगे, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो आपकी यादों के साथ है और किस कब है, पहले के टाइम की है, तो वो ना एट वंस क्या हो गया है, लूज़ देयर वैल्यू, कि वो लूज़ हो चुकी है उनकी वैल्यू। व्हेन सर्ट फ्रॉम देम, जब वो सेपरेट हो गया, वो मतलब जैसे उसकी मदर ही उससे सेपरेट हो गई है, तो अब उन चीज़ों की वैल्यू है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और तुम उसको यू सी दैम अगेन, उसको तुम देखोगे एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, और मेरे को क्यों चाहिए वो चीज़ें, व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, क्या करूँगी मैं उनके साथ, इन अ स्मॉल रेंटेड, क्योंकि मैं तो स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ, तो मैं उन उतने सारे सामान का क्या करूँगी। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, अब बेटा यहाँ पर श्रेड्स मतलब स्मॉल टॉन पीसेस, ठीक है, टुकड़े ऑफ ब्लैक आउट पेपर। ब्लैक आउट के पेपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज़ होता था। क्या होता था, ब्लैक पेपर है ना, खिड़की में टांग दिया करते थे या पेस्ट कर दिया करते थे, जिससे क्या है कि रोशनी होने से पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता है रूम में, मतलब घर में कोई रहता है, और एनिमी से बचा जा सकता है। Still hung along the windows and no more than a handful of the cutlery, सिर्फ एक मुट्ठी भर कटलरी ही काफ़ी है, फिटेड, और वही फिट हो सकती थी क्योंकि उनकी जो टेबल ड्रॉर थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ यहाँ पर कि वेयर द श्रेड्स ऑफ द ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग, अब तक लगे हुए हैं, along the विंडोज़ में, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड द नैरो टेबल ड्रॉर, कि यहाँ इस छोटे से नैरो टेबल ड्रॉर पर है ना सिर्फ हैंडफुल कटलरी फिटेड हो सकती थी। मैं इतनी सारी कटलरी का, इन चीज़ों का क्या करूँगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और फिर उन्होंने इस बात का डिटरमिन कर लिया कि मैं इस एड्रेस को बिल्कुल भूल जाऊँगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, और हर चीज़ को भूल जाना है, दैट आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होगा इन सब चीज़ों से मुक्त होने का। तो अगर हम किसी चीज़ को वापस ले नहीं सकते हैं, वो चीज़ें वो वापस ले नहीं सकती है नरेटर, तो बेटर क्या है उन सब चीज़ों को भूल जाना। इससे क्या होगा कि उसको खुद को भी तकलीफ़ नहीं होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद दिट्स question answers. Thank you. Have a nice day.